Myself, Mrs. Subi Basil, Medical Surgical Nursing 1, Unit 4, Atopic and Non-Atopic Allergic Reactions. Allergic disorders. Allergic disorders mainly two types: atopic allergic reactions and non-atopic allergic reaction. In atopic allergic reaction, what all disease condition comes? First, allergic rhinitis, atopic dermatitis, urticaria, angioneurotic edema, contact dermatitis. And second, non-atopic allergic reaction. In this, three disease conditions comes: latex allergy, food allergy and serum sickness. First, atopic allergic disorders. In that, first disease condition, allergic rhinitis. What is allergic rhinitis? It is also called hay fever or seasonal allergic rhinitis. This is type 1 hypersensitivity reaction. ये क्या है? It is a type 1 hypersensitivity reaction. Rhinitis means in cold season या in winter season क्या होता है, ये हमारा नोज़ के अंदर से ऐसा पानी निकलता है ना, ऐसा फीवर सीजनल एलर्जी होता है वो. ठीक है. Causes. What is the reason? Airborne, pollens, dust, molds, weeds, grasses. Symptoms क्या क्या होता है? Sneezing, nasal congestion, नोज़ बंद हो जाता है. Clear and watery nasal discharge, नोज़ से ऐसा पानी आ जाता है. Nasal itching, कुचली हो जाता है. Nasal itching of throat, throat itching होता है. Soft palate मीन्स हमारा जो माउथ के अंदर ऊपर का जो पार्ट है व्हाट दैट इज पैलेट, वो सॉफ्ट हो जाता है. wheezing sound, dyspnea, difficulty in breathing, coughing, tightness in chest, feeling tightness in the chest, thick sputum. Atopic dermatitis. It is type 1 immediate hypersensitivity reaction. It is a type 1 hypersensitivity reaction and it is caused by environmental allergens. Because of the reason क्या होता है? Environmental allergens. And in this elevated IgE levels present in patient. IgE level patient के अंदर वो IgE level present होगा and it is high हो जाता है. ठीक है. Causes. फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी. फैमिली में फैमिली हिस्ट्री है तो किसी और का हमारा पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को ऐसा प्रॉब्लम है तो हेरिडिटरी हो जाता है. ठीक है. सिम्टम्स. वासोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स रिजल्टिंग इन मीन्स ब्लड वेसल क्या होता है? वासोडाइलेट हो जाता है. ठीक है. उसकी वजह से क्या होता है? एडिमा मीन्स स्वेलिंग, प्रूराइटिस, इचिंग, हाइपर इरिटेबिलिटी ऑफ स्किन, स्किन इरिटेबिलिटी होता है, excessive dryness and sweating. Urticaria, this I have already explained in the terms PPT. It is a type 1 hypersensitivity reaction characterized by wheals. ठीक है. Pink, raised, edematous, pruritus areas means these all symptoms. मतलब these all symptoms एक साथ हम बोलने से क्या होता है? wheals. उसको क्या बोलते हैं? wheals. Okay. And itching, local discomfort. It develops after exposure to allergen and lasts from minutes or hours. Means एक बार हम जो allergen से expose हुआ है उसके बाद वो मिनट से लेके हावर तक ये जो एलर्जी आएगा. ठीक है. Histamine is released and cause vasodilation, wheals and flaring. Means histamine रिलीज करते हैं. ठीक है. Angioneurotic edema. It is a localized cutaneous lesion. It involves the deeper layer of the skin, resulting in more diffuse swelling rather than discrete lesion. It affects in eyelids, lips, tongues, larynx, hands, feet and genitalia. Swelling may begin in face and progress to airways and other areas of body. Means इसमें क्या होता है? Deeply localized cutaneous lesion and it will goes. Means cutaneous lesion होता है deep layer of the skin. Means skin के अंदर सबसे अंदर मतलब सबसे अंदर वाला लेयर में ये पूरा क्या होता है? एडिमा हो जाता है और
कौन सा जगह पे वो स्पेशली होता है? आईलिड्स में होता है, लिप्स, टंग्स, लैरिंग्स, हैंड्स, फीट एंड जेनिटालिया। एंड नॉर्मली क्या करते हैं, फेस में से स्टार्ट हो जाता है और एंड दैट प्रोग्रेस टू फिर एयरवे में चले जाता है, फिर पूरा बॉडी में चले जाता है। Contact dermatitis. It is a type 4 delayed hypersensitivity reaction. Contact dermatitis means skin infection. It is a type 4 hypersensitivity reaction. Causes. Skin has direct contact with allergen includes means skin directly जो चीज़ से contact करते हैं उसके वजह से क्या क्या चीज़ से होगा वो? metal compounds, mercury, rubber compounds, poison, cosmetics, dyes etc. एंड सिम्टम्स क्या क्या होता है? इचिंग, बर्निंग, एरिथमा मीन्स रेडनेस, स्किन लीशंस मीन्स अल्सर जैसा हो जाता है, एडिमा मीन्स स्वेलिंग। डायग्नोस्टिक टेस्ट CBC, रास्ट मीन्स रेडियो एलर्जो सॉर्बन टेस्ट मीन्स कौन सा एलर्जी है फाइंड आउट करने के लिए, मीन्स हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, 2, 3, 4 कौन सा है फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट स्पूटम, नेसल एंड ब्रोंगियल सेक्रेशंस टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ ईस्नोफिल मीन्स ये 3 जगह से सेक्रेशंस लेते हैं ईस्नोफिल का प्रेजेंस फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट PFT इफ़ आस्मा प्रेजेंट, पेशेंट को आस्मा है तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इंट्राडर्मल स्किन टेस्टिंग, इंट्राडर्मल स्किन टेस्टिंग करते। स्किन टेस्टिंग कैसा करते हैं? नॉर्मली कोई नीडल से ऐसा प्रिक करने के बाद कोई एलर्जेंस उसमें डालते हैं और फिर अंदर जाने के बाद टेस्ट करते हैं एलर्जी है कि नहीं। मेडिकल मैनेजमेंट, एंटीहिस्टामिन्स, डीकंजेस्टेंट ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीप्रोराइटिक ड्रग्स, immunotherapy and mast cell stabilizing drugs. Example, cromolyn and nidoquromil. And what is the action of these drugs? That inhibit the release of histamines. नर्सिंग मैनेजमेंट, कलेक्ट हेल्थ हिस्ट्री रिगार्डिंग हाइपर सेंसिटिविटीज़ मीन्स पूरा पेशेंट को वो हिस्ट्री लेना है, कौन किस चीज़ की वजह से हुआ है, मतलब एनवायरमेंटल कोई रीज़न है, ठीक है, वो सब पूछना है। नेक्स्ट फिजिकल असेसमेंट इंक्लूड्स, फिजिकल असेसमेंट करना है, इट इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, माउथ, स्किन एंड फॉर लीशन, आइज फॉर टीयरिंग एंड रेडनेस, रेस्पिरेटरी रेट एंड breath sound. नर्सिंग मैनेजमेंट, मॉनिटर वाइटल साइंस फ्रीक्वेंटली, उसमें क्या क्या देखना है? वाइटल साइंस फ्रीक्वेंटली चेक करना है, हाइपोटेंशन, टकीकार्डिया एंड टकिपनिया स्पेशली। सेकेंड, असेस स्किन कलर, कैपिलरी रीफिल, टेम्परेचर एंड एडिमा। थर्ड, मॉनिटर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। फोर्थ, obtain and record complete history of allergy prior to blood transfusion to prevent allergic reaction means पूरा हिस्ट्री पेशेंट का लेना है, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूशन का कोई ज़रूरत है तो पूरा हिस्ट्री लेने के बाद ट्रांसफ्यूज़ करना है। एडवाइज द पेशेंट टू आइडेंटिफाइज एलर्जेंस मीन्स पेशेंट को एलर्जिक रीज़न किस वजह से हुआ है वो आइडेंटिफाई करना है। एडवाइज द पेशेंट टू रिड्यूस एक्सपोजर टू पॉलन्स, पेशेंट को बोलना है बाहर मतलब एनवायरमेंटल एक्सपोजर ज़्यादा होने से क्या होता है, एलर्जी होता है, तो वो अवॉइड करने के लिए बोलना है। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक फूड्स और मेडिसिन दैट कॉज एलर्जी, पेशेंट को बोलना है स्पेसिफिक कोई मेडिसिन की वजह से है, फूड की वजह से है, तो वो अवॉइड करने के लिए बोलना है। एडवाइज द पेशेंट टू रिड्यूस डस्ट इन हाउस बाय यूजिंग वेट मॉप्स इंस्टेड ऑफ डस्टिंग, पेशेंट को बोलना है घर पे झाड़ू पोछा करने की जगह पे क्या करना है, पहले वार्म डस्टर से साफ करने के लिए बोलना है। एडवाइज द पेशेंट टू मेंटेन डस्ट फ्री एनवायरनमेंट बाय रिमूविंग ड्रेप्स, कर्टन्स, रग्स और कारपेट्स इन रूम, पेशेंट को बोलना है रूम के अंदर जो डस्ट मतलब रहेगा वैसा चीज़ घर से निकालने के लिए, मीन्स कर्टन्स, कर्टन में क्या होता है, डस्ट आ गया तो वहीं पे रहेगा, वहाँ से चले नहीं जाएगा, इसलिए कर्टन, कारपेट, ड्रेप्स, रग जो भी चीज़ है वो निकालने के लिए बोलना है। नेक्स्ट, एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड यूज ऑफ स्टफ्ड फर टॉयज, फेदर, पिल्लोज एंड आर्टिफिशियल फ्लावर इन रूम्स एज दे कंटेन लॉट्स ऑफ डस्ट, पेशेंट को बोलना है घर के अंदर कोई कोई क्या है उसको हॉबी है ऐसा टेडी बियर जैसा उसको घर पे खेलने के लिए रखते हैं या शो के लिए रखते हैं, वो सब अवॉइड करना है, क्योंकि क्या होता है उसमें टेडी में वो उसका जो हेयर होता है उसकी वजह से, पिल्लोज भी ऐसा पिल्लोज आता है उसमें भी क्या है उसका फेदर है, तो उसकी वजह से भी एलर्जी होने का चांसेस है। और आर्टिफिशियल फ्लावर इन रूम दैट ऑल शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द रूम।
Next, advise the patient to observe previous allergic reaction, their symptoms and methods that has given relief. पेशेंट को बोलना है पहले कोई एलर्जी हुआ है तो किस मतलब मेडिसिन लिया है कि नहीं और किस चीज़ से वो एलर्जी रिलीव हो गया एंड जब आया तभी सिम्टम्स क्या था वो सब पूछना है. ऑब्जर्व करने के लिए बोलना है. मॉनिटर द पेशेंट क्लोजली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यू मेडिसिन एंड एक्सपोजर टू न्यू फूड एंड अदर एलर्जेंस. मीन्स पेशेंट को वॉच करना है न्यू मेडिसिन देने का टाइम या न्यू फूड देने का टाइम पेशेंट को वॉच करना है. नेक्स्ट, एडवाइज द पेशेंट टू टेक प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन. पेशेंट को बोलना है जो प्रिस्क्राइब किया वाला मेडिकेशंस लेने के लिए.